Hello everyone. Today's topic is profit and loss appropriation account. In this topic we will study meaning, features and format of profit and loss appropriation account. जैसा कि बच्चों को याद होगा 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। उसमें एक सिंगल ओनर होता है और वो कितने अकाउंट्स मेंटेन करता है वो हमने सीखा था। उसमें फर्स्ट अकाउंट जो हमने सीखा था वो था trading account, which shows the gross profit or gross loss of the business, and second account was profit and loss account, which shows net profit or net loss of the business, and third was balance sheet. Balance sheet shows financial position of the business. अब यहाँ पर क्या है इस टॉपिक में, यहाँ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप में एज यू नो देयर आर 2 or more than 2 पार्टनर्स इन ए फर्म। इसलिए 11th में जो हमने किया था सोल प्रोप्राइटर के जो अकाउंट्स मेंटेन किए थे उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो सिंगल ओनर को चला जाता था और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में हम उसको एडजस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर ओनर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए हमें कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन करना होता है और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के या ओनर्स के तो अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। जो भी अमाउंट उनको पेबल होता है या उनसे लेना होता है फर्म उनको उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करती है। इसलिए सबसे पहले हम इसमें मेंटेन करते हैं अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to show how net profit as per profit and loss account has been appropriated. This account is an extension of the profit and loss account and is credited with the net profit taken from the profit and loss account and interest on drawings of the partners, which is loss to the partners but an income for the firm, and debited with interest on capitals of the partners, partner salary and commissions, etc., which is a loss for the firm but an income for the partners. After transferring an amount to reserve, if agreed, the balance profit is distributed among the partners in their profit sharing ratio. This is the meaning of profit and loss appropriation account. अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं। एंट्रीज जो इसमें की जाती हैं बिल्कुल सेम है जो 11th क्लास में हमने किया था एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ P&L अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते थे, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमारे अकाउंट में शो होता है P&L अकाउंट में उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। In case of net profit, entry will be profit and loss account debit to profit and loss appropriation account, and in case of loss, entry will be profit and loss appropriation account debit to profit and loss account. Next entry is for interest on drawings. Drawings का मीनिंग आप बड़े अच्छे से जानते हो, 11th में हमने पढ़ा था ये टर्म्स में। Drawings means any amount withdrawn by the owner of the business for personal use or personal purpose is called drawings. Entry for interest on drawings will be partners capital account debit to interest on drawings. Second entry will be interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. Next entry for interest on capital. As you know, interest on capital is an expense for the firm but an income for the partner. Entry will be इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअली ट्रांसफर होता है ये। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस A, B and C. Entry will be interest on capital account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. Second entry will be when interest on capital transfer to P&L appropriation account is profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. Next entry for partners salary.
As you know, salary of partner is an expense for the firm but an income for the partner. An entry will be partner's salary account debit to partner's capital account. Second entry will be profit and loss appropriation account debit to partner's salary account. Next entry for partners commission. If there is a provision for commission, then entry will be partners commission account debit to partners कैपिटल अकाउंट. इंडिविजुअली इसमें ट्रांसफर करना पड़ता है, पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई, देन एंट्री विल बी partners commission account debit to X capital account to Y's capital account. Second entry will be profit and loss appropriation account debit to partners commission account. जो पार्टनर्स कमीशन होता है वो पार्टनर्स के लिए इनकम होता है और फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम फर्म के अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे, और जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व. अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन है कि हमने नेट प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट है टोटल फर्म का उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व के फॉर्म में रखना है, तो उस केस में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व. सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. As you know students, reserves are maintained for strengthen or emergency for the business or for unknown liability of the business. ये टॉपिक भी 11th क्लास में चैप्टर प्रोविजंस एंड रिजर्व में हमने पढ़ा था अच्छे से. थ्योरी पोर्शन था वहाँ पर सारा कि रिजर्व और प्रोविजंस हम क्यों मेंटेन करते हैं. रिजर्व्स आर मेंटेन फॉर अननोन लायबिलिटी एंड प्रोविजंस आर मेंटेन फॉर नोन लायबिलिटी. अब नेक्स्ट आता है, ये एंट्रीज हैं आपकी रिजर्व्स की, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपको. नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है इसका नेचर, और एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द फर्म विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स और अर्निंग्स ऑफ द फर्म विल बी credited, and difference of debit and credit will be net divisible profit or net divisible loss which is transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. तो ये आपका है फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. इसके डेबिट साइड में सबसे पहले नेट लॉस एज पर P&L अकाउंट उसको ट्रांसफर किया जाता है. जैसे 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, सेम यहाँ पर भी है. जो लॉस है उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और अगर नेट प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट आइटम ऑफ डेबिट साइड विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व. इन क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, loss transfer to partners capital account in the profit sharing ratio. This divisible loss or divisible profit is the difference between debit and credit side. Next हम पढ़ेंगे difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. मैंने पहले भी बताया है आपको, एक बार फिर से कर लेते हैं. Main difference between P&L account and P&L appropriation account. P&L account is prepared after trading account, but profit and loss appropriation account is maintained after profit and loss account. Second difference is profit and loss account is prepared to ascertain net profit or net loss of the business, but profit and loss appropriation account is prepared to distribute the net profit of the year among the partners as per their profit sharing ratio. Third difference is profit and loss account is not prepared as per the agreement, but profit and loss appropriation account is prepared as per the partnership agreement of date.
Next difference is expenses debited to the account या debited to P&L account are charged against profit. It means प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस शो किए होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. एंड मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये एक्सपेंस बिजनेस को करने ही पड़ेंगे. सेकेंड, items debited to P&L appropriation account are appropriation of profit. appropriation of profit का मीनिंग होता है अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो ये डेबिट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो ये आइटम डेबिट नहीं की जाएंगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो आज का टॉपिक हमारा ये था. तो बच्चों आप इसको पढ़ना है ध्यान से, एक एक स्लाइड को पोस्ट करना है, नोटबुक में नोट करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और समझना है. थैंक यू, टेक केयर.